with someone like someone that is a senior of the fraternity, I think that there is some grace that is expected, which is missing. And there are fine actors like Mr. Kher, Anupam Kher. He is a fine actor. He's provided us with everything from comedy to being a villain to being a a supporting cast. Neither Anupam Kher nor Nasiruddin Shah, none of them are getting the kind of roles that Amitabh Bachchan is doing. I counted them. 11 फिल्में अमिताभ बच्चन कर रहे हैं इस वक्त, उनसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा है. अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अगर 11 फिल्में अमिताभ बच्चन करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? But Sunil, there is something that I've observed, and you can tell me what you feel about this. Looking at his personality, Mr. Bachchan's personality, the way he has kept the women at home, and the son is being overshadowed by the father, and it's like, I don't think he overshadows his father. He overshadows his son, because Abhishek has his own career, he has his own career. That's not the issue. Abhishek Bachchan maybe could not click as much as he should have. Right. So for whatever reason, because people are comparing, whatever the reason is. I'm not debating the reason, but it's turning out that even the family dynamic that I see within his family, it's very patriarchal. So I don't know we should comment on that, on things which are personal to them. So this is but that kind of shows the personality of a person. But if we know personally, you or I won't know personally to comment on that. But this is how would we have? Yeah, but we see that. We see that in public domain. Okay, you may get an impression. You get that impression. Yeah, that's the impression. Okay. And also, the other thing I wanted to also share with you is that, it's like, even when he's such a senior actor, there is no grace in which, like, I have never seen him mentor any younger actor or take them under his wing and mentor him. I've not seen that. I mean, it is mine, give me, whether it's endorsements or whether it's I, me, myself life. Yes. So that's not grace. That is not gracious. And I mean, now, because of the spotlight that's there on the fraternity, it's coming to light. But it's been happening all the while. I mean, I think he was doing Who Wants to Be a Millionaire, the Hindi version of it. Crorepati. Yes, but did someone else also try and couldn't do, and then he got it back again? Something like that happened? Shah Rukh Khan was called for one season, and he could not click, so Amitabh Bachchan was brought back. So he was at that time where he had to leave that show, so it was given to Shah Rukh Khan, but he couldn't pull it off. Well, I mean, then it could have gone to someone else. Why did it come back to him? The point that you are making is very valid. One point which is valid is, अगर 11 फिल्में अमिताभ बच्चन इस वक्त कर रहे हैं, अगर, तो उन 11 फिल्मों में से मान लेते हैं 2 फिल्में अनुपम खेर भी कर सकते हैं. He can do that. 2 फिल्में नसीरुद्दीन शाह भी कर सकते हैं, 1 फिल्म शरद सक्सेना भी कर सकते हैं. तो कम से कम ये कंप्लेन नहीं होगा. Someone like Sharad Saxena coming and saying that if there are very few movies being made with keeping the old age characters in mind, or whatever is being made, that is all going to Amitabh Bachchan. What is left is dirt, and we have to pick from the dirt, and there's nothing relevant, so we don't pick anything. So that means there's nothing for them. He says the work-wise, I have what is there in front of me is 0. You can't have this scenario where everything goes to one basket and the rest of the baskets are all empty. You can't have that scenario. True. और खाने दो, जियो और जीने दो. Absolutely. Yes, Payal, go ahead. बोलिए. सर, मैंने तो पहले आपका चैलेंज में बोलना चाहूंगी, मैंने अब तक 21 फिल्म का नाम नोट कर पाई.
आपके शो के, आपके नरेशन के। Okay, good. Good. That's the challenge I've given. I hope that people accept that challenge. आप बताइए कितने फिल्मों का नाम मैंने लिया। ये बताइए पायल की मेरा नरेशन आज का कैसा लगा? तो मैंने 21 लिया है। पहले नरेशन कैसा लगा? क्योंकि आज का नरेशन डिफरेंट। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। न्यूज तो मैंने तो वही भी वहां पे कमेंट भी किए थे कि वाह सर जी, क्योंकि आपने जो आज का नरेशन बनाया है ना, ये आपका सेल्फ मेड है पूरी तरह से। मेरे सेल्फ मेड है, बिल्कुल। हाँ, और शहंशाह कैसे बनता है मैंने बताया। कोई शहंशाह कैसे बनता है, दो ही तरीके से बनता है। एक तरफ कोई नसीब के जरिए या फिर मेहनत करके, मतलब काले पत्थर को हीरा बनाकर बनता है ना, यही दो तरीके हैं। अब कौन कैसे बना ये आप लोगों पर है सोचना। हाँ, और ये लोग क्या पता है क्या है, जो हम लोग ये लोग ना कुछ मूवीज कर लिए हैं, जैसे कि शहंशाह, जैसे कि बादशाह, ठीक है, जैसे कि दबंग। अब खुद को ये वही समझ रहे हैं, थोड़ी ना ये खुद के बादशाह है, खुद के शहंशाह है, खुद के दबंग है। तो ये लोग तो हम लोग देखते हैं, वाहवाही देते हैं, ताली देते हैं, हम ही लोग नाम देते हैं। वो देखिए शहंशाह जा रहे हैं, वो है बॉलीवुड के बादशाह, वो है दबंग 1 2 3। तो ये लोग तो हम पब्लिक है जो उन लोगों को नाम दे रहे हैं। वो लोग खुद अपने से नाम क्या कमाए हैं? स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिखे हैं, म्यूजिक जो बनाए हैं वो लोग म्यूजिक लिखे हैं, वो लोग काम किए हैं, अप्रिशिएशन हम लोग किए हैं, तब आज के जाकर वो शहंशाह बादशाह दबंग बने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कोई नहीं बनते हैं, पब्लिक है। अगर पब्लिक हाथ उठा दे तो अब शहंशाह से कहाँ पहुंच जाएंगे। एक फेस ऐसा भी हुआ है ये शहंशाह जी को, इनको खुद भी रियलिटी पता है कि कैसा एक फेस था। ये तो कितने हद तक सेल्फिश है, ये सब पब्लिक जानते हैं। और आज जो शरद, मैंने ये न्यूज पहले भी देखा है, पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था आप क्या बोल रहे थे, फिर मुझे समझ में आया कि आप किस बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने ये न्यूज पहले भी देखे हैं और देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। नहीं है, पॉइंट बहुत सिंपल है। शरद सक्सेना के जैसे इसी एज के और भी लोग, अब शरद सक्सेना को 2 घंटे जिम करना पड़ता है टू लुक 50-55। ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है ना। जो शख्स 72 ईयर्स ओल्ड है वो जाकर रोज 2 घंटे जिम कर रहा है, और ये इतने अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी, इतने फेमस मूवीज करने के बावजूद भी उनको इतना एफर्ट देना पड़ रहा है। ये कोई ऑर्डिनरी एक्टर नहीं है। नहीं, वही तो, जो छोटे छोटे एक्टर एक्ट्रेस है तो वो मतलब घुन की तरह तो इधर उधर इधर बिधर हो जाएंगे। वो लोग तो बॉलीवुड जैसे गैंगस्टर में सबको पीस जा रहे हैं ना, सबको पीस ही देंगे। तो ये लोग क्या अपने आप को समझते क्या है? हम लोग क्या जानते हैं, जो घर के जो बुजुर्ग है वो बड़े पेड़ की तरह होते हैं, जो सबको लेके चलते हैं, सबको अपनी छत्र छाया में लेके चलते हैं। Correct. तो बॉलीवुड के जो ये हेड खुद को हेड मानते हैं कि हम लोग ही मेन है, ओल्ड है, तो ये सबको लेके चलेंगे या सबको हटाकर हम ही एक है, यही मतलब यही जाहिर करने के लिए इस उम्र में भी मतलब बैठे हुए हैं। 11 मूवी तो ठीक है, अब 11 क्यों, अब 21 मूवी भी कीजिए। 11 फिल्म वो हैं ऐसा नहीं है। 11 फिल्म वो हैं, ये फिल्में ऑलरेडी फ्लोर पे हैं, ये बन रही हैं। तो नहीं, मतलब अगर उस हिसाब से बाकियों को भी तो 3-4 हर किसी के झोली में रहना चाहिए। आप 11 ले जाएंगे, नहीं है, किसी के पास नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, अगर तो आप काउंट करें तो शायद अनुपम खेर के पास 1 या 2 फिल्म, नसीरुद्दीन शाह के पास वो छोटी सी एक फिल्म आई थी ना भी, वो सीमा पावा ने बनाई थी। व्हाट वाज दैट मूवी, अब जिसका कंट्रोवर्सी भी हो गया था, उसमें एक छोटा सा रोल नसीरुद्दीन शाह का था, ऑफ अ डेड मैन। वो शुरू में आते और लास्ट में मैं एक मूवी का नाम बोलना चाहूंगी यहाँ पे, अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह का है, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है और मुझे अच्छा भी लगता है। वो है अ वेडनेसडे। यस राइट, अ वेडनेसडे। मतलब फर्स्ट से एंडिंग तक इतना सस्पेंस है उस मूवी में कि आप अगर देखेंगे तो लगेगा कहाँ है। लेकिन आज की तारीख में ऐसी फिल्में नहीं बन रही हैं। सारी फिल्में सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन को दिमाग में रख के बन रही हैं। तो क्या अमिताभ बच्चन एट द एज ऑफ 80 उनको ये बात, और मूवी है ओमपुरी जी का धूप, शायद धूप, मैं अगर गलत नहीं बोल रही हूँ, ओमपुरी जी का, अपने बेटे के इंसाफ लेकर ऐसा कुछ पेट्रोल पंप वगैरह, ऐसे वो डिफेंस में थे, ऐसा कुछ चले जाने के बाद, ऐसी मूवीज हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं। मतलब आजकल की पब्लिक, मतलब इंटेलेक्चुअल तो मतलब हो या ना हो,
लेकिन कुछ हद तक वो लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छे कंटेंट भी हमें मिले। हमेशा ही ताली और सीटी। कंटेंट तो पायल, कंटेंट तो हो सकता है अमिताभ बच्चन की फिल्मों में भी मिल जाए, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट बहुत सिंपल है। पॉइंट ये है कि आपके पास खाने के लिए 5 रोटियां हैं, है ना, और आपके घर में 5 लोग हैं। अब 2 ही तरीके हैं, या तो एक ही शख्स 5 रोटी खा ले, या 5 को एक एक रोटी मिले तो सब जिंदा रहेंगे, और एक ही आदमी खाएगा तो केवल वो जिंदा रहेगा, बाकी 4 तो मर जाएंगे। तो यहां पर यही बात है, अगर 12 फिल्में बन रही हैं, कीपिंग एन ओल्ड कैरेक्टर इन माइंड, ओल्ड कैरेक्टर को लेके 12 फिल्में बनी, तो 12 फिल्में में से अगर 4 अमिताभ बच्चन करेंगे, तो अब मुझे अमिताभ बच्चन ये ना बताएं कि 80 में अगर मैं ये 12 फिल्में नहीं करूंगा तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी 80 इयर्स ओल्ड मैन के लिए अगर आपको अब 12 की 12 फिल्में आप ही को करना है फॉर योर फैमिली टू सर्वाइव, आई थिंक यू हैव नॉट बिल्ड योर फ्यूचर प्रॉपरली। मतलब plus the show plus the endorsements, everything is doing. कौन बनेगा करोड़पति is doing endorsements, maximum endorsements he is doing voiceovers for government advertisements, then he is also doing films. So सब कुछ आप ही कर रहे हैं, बाकी लोग क्या करें? शरद सक्सेना को पूछ रहे हैं ना कि मैं क्या करूं, मेरे पास सर यहाँ पर ऐसा है कि 5 रोटी भी खाएंगे और बाकी का चावल अगर बचा हुआ कुछ है वो भी खा जाएंगे, मतलब सब कुछ हम ही ले जाएंगे। नहीं, तो किसी को कुछ नहीं देंगे, एक दाना भी नहीं देंगे। तो ऐसे अगर ऐसे करते चलेंगे तो इंडस्ट्री तो मतलब गया। अब मतलब एक इंसान, मतलब आज शरद सक्सेना बोले हैं, इसके पहले कादिर खान जी भी बोले हैं। अभी एक चीज इंपॉर्टेंट है पायल, अभी तक तो किसी ने अमिताभ बच्चन के बारे में ऐसे नहीं बोला था, राइट? अमिताभ बच्चन सारी फिल्में ले जा रहे हैं। कादिर खान जी ने ऐसे बोले हैं। कादिर खान ने बोला था कि अमिताभ बच्चन ने मुझे हेल्प नहीं किया, करेक्ट? लेकिन शरद सक्सेना बोल रहे हैं कि मैं फिट हूं, मैं फिल्में कर रहा हूं, मुझे फिल्म करना है, मुझे पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे काम करना है, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूं क्योंकि अमिताभ बच्चन सारी फिल्में लेकर चले गए। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अगर ये बताता है कि देयर इज अ मोनोपोली दैट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। मोनोपोलाइज कर लिया है, ग्रुपिज्म में पूरी कंप्लीटली मोनोपोलाइज कर लिया गया। यानी इंडस्ट्री में जो भी प्रोड्यूसर है वो अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर दिमाग में रख के बना रहा है जो 70 प्लस है या 65 प्लस है, तो वो फिल्म केवल अमिताभ बच्चन को जाएगी और किसी को नहीं जाएगी। ये तो पूरा मतलब कार्टेलाइजेशन हो गया ना, ग्रुपिज्म हो गया। आपने पूरा एक ही शख्स को दे दिया, इसको तो मोनोपोली बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक एक्ट का वायलेशन है ये तो, यू हैव मोनोपोलाइज्ड इट। मतलब सर इसमें एक और बात है, जो प्रोड्यूसर है शायद इन लोगों के बाद भी मिसकॉन्सेप्ट है कि पब्लिक सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही लेंगे। ऐसा नहीं है, पब्लिक हर कंटेंट को, हर अच्छी चीज को पब्लिक लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ अमिताभ बच्चन ही करेंगे तो वो मूवी हिट होगा। तो अ वेडनेसडे क्यों हिट होती? अ वेडनेसडे हिट हुई ना। have you watched the Hindi English movie Intern? Have you watched that movie? No, I've not. With Robert De Niro and Anne Hathaway? I have not. Well, I strongly recommend you watch that movie. I strongly recommend you watch that movie and you tell me how wrong the cast is, if they're trying to copy something, how wrong that cast is. It's not the right cast. सर मैं एक लाइन और आपके मैं ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पर शहंशाह तो सरकार चलाने में मस्त है। नहीं, सरकार भी यही है, शहंशाह भी यही है, मिस्टर नटवरलाल नहीं, सरकार मूवी के बाद बोल रहे हैं, उनके तो मूवी भी एक है ना सरकार। मैं भी वही बोल रहा हूँ। तो सरकार नाम भी आया था, भूल गए हो, यू हैव मिस्ड दैट। एक और नाम ऐड कर लो उसमें, लिस्ट में सरकार भी है। You have to watch and listen to the narration 5 times to get the numbers right. This is a challenge. I'm again repeating. मैंने आज नरेशन दिया है उसमें कितने फिल्मों का, अमिताभ बच्चन की कितने फिल्मों का नाम लिया है। This is a challenge. Please count it and send me and write to me on my messenger. Whoever gets it right, I will announce that tomorrow's show or whenever we are meeting next. Hopefully we are meeting at 9 p.m. tomorrow. But in case something goes wrong or something happens, then we'll meet on Monday. But otherwise, 9 p.m. we are meeting. So I will let you know exactly what was the number and who got it right. But मुझे शक है कोई भी नहीं काउंट कर पाएगा, because वो इतना ज्यादा घुमा फिरा हुआ है
कि मुझे डाउट, आई एम ऑन सीरियस डाउट, आई एम थ्रोइंग अ चैलेंज, आई एम डाउटिंग एंड स्टिल थ्रोइंग अ चैलेंज, प्लीज काउंट द नंबर्स एंड गिव मी द नंबर्स, और एग्जैक्ट नंबर्स मिल गए, कोई चीटिंग नहीं हो सकती क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ नरेशन, सो चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं। सर मुझे बताइए, अगर नरेशन के बाद है वो या उसके बाद भी? नहीं, सिर्फ बहुत सारे नरेशन, मूवीज के नाम है, सिर्फ और नरेशन के पार्ट है। स्टार्टिंग में जहां मैंने बोला है कि कोई शहंशाह कैसे बनता है, वहां से लेकर जहां मैंने खत्म किया है, जहां मैंने बोला कि और कोई अपने बागवा का डॉन तब बनता है जब अमर अकबर एंथनी का साथ मिले, और Sunil, I have a question for you. I have a मैं question for मुकद्दर you. का सिकंदर हूं, वहां पे खत्म होता है। तो इस दौरान इस नरेशन के बीच में जितनी फिल्में आई हैं, आपको वो काउंट करना है और मुझे बताना है। Sunil, I have a question for you. Yeah. The question, based on your experience, is what are your thoughts about why this monopoly is being played out? Is there a fear of some sort, or is there It's a perception, what is going on? game that is going on in Bollywood. केवल यही कर सकते हैं, ये गलत है। ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी परेशानी है, सिर्फ ये कर सकते हैं। अगर पायल को कोई खाना में कोई डिश अच्छा बनाना आ गया, तो पायल से ही बनवाते रहेंगे जिंदगी भर वो डिश। बोले पायल तुमको ही बनाना आता है, ये नहीं सोचेंगे हो सकता है पायल की जो सिस्टर है वो भी बना सकती है, लेकिन वो देंगे ही नहीं उसको अपॉर्चुनिटी। वो बोलेंगे नहीं तुम टच मत करो, पायल ही बनाएगी। तो इंडस्ट्री का वही हाल है जैसा बाकी जगह का है। मतलब ये भेड़चाल है, मैं बता रहा हूं, हर चीज में भेड़चाल है। आपने अमिताभ बच्चन कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन को ही देते जाओ, रिस्क मत लो, डोंट टेक एनी रिस्क। What I'm trying to understand is there is such a fear of failure of some sort. Correct. Yes. Correct. That's why I'm saying, ना, they don't want to take the risk. जो चल रहा है जैसे वैसे चलने दो, बिग बी को दे दो, बच्चन साहब आएंगे कर देंगे, आपका जो पैसा है वो रिकवर हो जाएगा। आप मस्त रहो, रिस्क मत लो। दूसरे को देखो पैसा नहीं आया तो अरे भाई रिस्क नहीं लोगे तो शोले ही नहीं बनेगी, है ना। अगर no risk no reward, no risk no reward, तो देन फिर तो जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं लाइफ में। and then how are they setting up? believes in status quo. इस कंट्री को स्टेटस को पसंद है। सुशांत सिंह राजपूत नहीं चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत आने से चीजें डिस्टर्ब होती हैं। Because he doesn't stick to one genre of films. Because he has a range. He's educated, he's intelligent, he thinks. इनको सोचने वाले लोग नहीं चाहिए, इनको मशीन चाहिए। They need machines. जो कह दिया, सोचने वाले लोगों को तो ये लोग ज्ञान गुरु बोल के चिढ़ाते हैं कि आइए ज्ञान गुरु जी। मैं बता रहा हूँ, ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत सिंपल वे में फंक्शन करती है। बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट, रीड द पोस्टर अगेन। यस बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट, नॉट अंडरस्टूड, रीड इट अगेन। सो बहुत सिंपल है, जो मैं कह रहा हूं आप करते जाओ, दिमाग मत लगाओ। और ये केवल इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यही चलता है। दिमाग जो लगाता है उसको बाहर कर दो, दिमाग लगा रहा है बाहर करो। क्यों? क्योंकि दिमाग लगाएगा सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर मेरा क्या होगा? इनसिक्योरिटी, व्हाट यू आर सेइंग ना नम्रता, इज इनसिक्योरिटी इज द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस इंडस्ट्री टू जस्ट स्टिक विद द पीपल जो उनके हिसाब से ठीक चल रहा है। सलमान खान आएंगे, 300 करोड़ का ब्रैकेट में फिल्म बनाएंगे, 300 करोड़ आ जाएगा, सबका जिंदगी अगले 2 साल के लिए चलेगा। शाहरुख खान को देंगे, लोग इतना पैसा तो आ ही जाएगा। आमिर खान को देंगे, इतना पैसा तो आ ही जाएगा। Sunil, do you remember? तो जो सर इसके लिए तो मैं खुद अपने आप को भी जिम्मेदार मानूंगी। हम लोग भी जिम्मेदार है, क्योंकि इतने साल से हम लोग इन लोगों को मतलब बढ़ा चढ़ा के मतलब वो लोग प्रोजेक्ट किए, हम लोग लिए हैं, माने हैं, हिट किए हैं और पैसे दिए हैं। अगर हम लोग ऐसे नहीं करते तो इंडस्ट्री शायद कुछ रिस्क लेने की कोशिश करते, क्योंकि हम लोग उन लोगों को पता है अमिताभ के नाम पर मूवी चल जाएगा, सलमान खान का नाम पर मूवी चल जाएगा, शाहरुख खान के नाम पर मूवी चल जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल पायल देता हूं। जब केदारनाथ आई थी, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, ओके, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। जब केदारनाथ आई थी, केदारनाथ के रिव्यूज बहुत खराब आए थे, है ना, सबने रिव्यूज खराब लिखे थे। ये तो अब पता चल रहा है कि केदारनाथ का रिव्यू जो है वो बॉट था, वो फज था, गलत रिव्यू दिया गया था। करेक्ट? ये आज पता चल रहा है कि डार्क आर्टिकल्स वगैरह लिखे जा रहे थे।
लेकिन केदारनाथ जब फिल्म आई थी, क्योंकि इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज थे, मैंने केदारनाथ नहीं देखी। क्यों मुझे लगा बकवास फिल्म है, नहीं देखूंगा। परसेप्शन पे गया मैं अपना बता रहा हूं। आई वेंट बाय द परसेप्शन दैट वाज बीइंग सर्व्ड इन फ्रंट ऑफ मी। परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि इट्स अ बैड मूवी। फिल्म कौन सी अच्छी आ रही है? सिम्बा। सारा अली खान की 2 फिल्में आ रही थी, एक थी केदारनाथ और एक थी सिम्बा। केदारनाथ को साइड कर दिया, सिम्बा को उसका लॉन्च मूवी बताया इन्होंने। क्यों? केदारनाथ तो बकवास फिल्म है। सिम्बा देखिए, सिम्बा में उसका सिर्फ 5 मिनट का रोल है, उसको फिल्म बोलते हैं? सिम्बा को फिल्म बोलते हैं? सिम्बा तो सिर्फ पैसे बनाने की मशीन है। इट्स अ 2 मिनट्स नूडल्स, जैसे बादशाह का गाना 2 मिनट का नूडल है। Sunil, remember Satyajit Ray. Remember Satyajit Ray and his movie making and how he took uncelebrated actors and he still made a fantastic movie called Pather Panchali and it got critical acclaim. There were no recognized actors. There was no one that was recognized. And he didn't even have the money to have a cinematographer. He was doing the whole thing. And he still won critical acclaim. Look at someone like Basu Chatterjee or a Rishikesh Mukherjee. They made films with new upcoming actors and they still got critical acclaim with little or no budgets. What happened? Where did we lose our way? Where did Bollywood lose their way? Is my question. No, it's a very simple thing. This industry believes in status quo. It doesn't want to disturb the status quo. Yeah, आप फिल्म लाइए, सिम्बा लाइए, 200 करोड़ बनाइए और घर में बैठ जाइए। 2 मिनट लोग भूल गए. Who knows what is the story of Simba? No one knows. But everyone remembers what is केदारनाथ. केदारनाथ को सब लोग याद रख रहे हैं. क्यों? केदारनाथ had a storyline. Kedarnath had good performance. Kedarnath had good actors. Kedarnath had good music. तब जाके केदारनाथ बनी थी. Because the director was honest, actors were honest, the script was honest, songs were honest, lyrics were honest, music was honest. But Sunil, we say we need good role models. We had good role models. Satyajit Ray was recognized the world over. Everyone recognized him. We had great role models. What happened? That is entirely a different topic. Why quality of movies are not being of that level. But the point is very simple. Amitabh Bachchan has reached a stage where Amitabh Bachchan can distribute his work, where Amitabh Bachchan can influence producers the way they think. He can That's tell what I'm them saying. that okay, you do this, give this role to X person or Y person. So Amitabh Bachchan can guide the industry to behave. But Amitabh Bachchan has been completely silent for last 2 years. Ever since, not 2 years, last 13 months, ever since Sushant Singh Rajput case happened and people started screaming, asking him to speak. Amitabh Bachchan went into a different zone. He decided not to speak at all. So instead of guiding the industry, he's only interested in himself. My show, my family, my films, that's it. The people that he's worked with, he probably got some immense experience working with them because they had a way to direct movies and he learned from the best. He should share that knowledge. That's right. That knowledge is worthy of sharing so that the next generation is that much better. Yeah, I agree. But he refuses to do that. I agree. Like I don't know why he's so stingy about his knowledge. Holds on to it and doesn't want to share. No, Amitabh Bachchan had a great aura. I have met him. I know, when you see somebody like Amitabh Bachchan, I'm talking about about 7-8 years ago. When you see somebody like Amitabh Bachchan at that time, Amitabh Bachchan, the way he would talk, the way he would walk, he was an ideal person. He was the example. Now, what is happening to him today? He is setting a bad example. There are people talking about him. So the entire aura has come down. For me, there were only 2 gods. For me, till few years ago, I thought only Sachin Tendulkar and Amitabh Bachchan are gods in this country. Because Amitabh Bachchan was a cinema god and Sachin was a cricketing god. But
the entire perception about Amitabh Bachchan has changed, because you have to set an example. You have to guide the industry. I'm not saying that you have to say in favor or against. I'm not saying that. In Sushant Singh Rajput case, he could have not said anything in favor or against, but he could have asked the industry to behave. Create a system. He could have easily asked the industry, आप एक system create कीजिए जहां पर safety, security, respect सबके लिए हो. न सुरेखा सिकरी के पास सिक्योरिटी थी, न शरद सक्सेना के पास सिक्योरिटी है, न सुशांत सिंह राजपूत के पास सिक्योरिटी है, न शाइनी आहूजा को किसी ने सिक्योरिटी दी. एलिगेशन गलत था, प्रूव हो गया, फिर क्या हुआ उसका? उसको कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा. कहां है वो? No one is bothered about it. I'm reading a comment by Shomit. He says, I saw Pather Panchali 5 times. Don't compare Amitabh with him. I'm not comparing. I am really not comparing. You need not compare, but I'm saying Amitabh Bachchan has also done some good movies. That's apart. But point is, if you are the guardian of any industry, then behave like guardian. You can't just be mute spectator. You are being mute spectator here. So your aura will go down. Obviously, your aura will go down. Well, he's the patriarch of Indian cinema right now. Living patriarch. I don't think he is now. Now I think his aura has really gone down. He hasn't lived up to the expectation of people, because people expected him to set things right. If something wrong happened, if tomorrow it proves that Sushant Singh Rajput was murdered, I'm hypothetically saying, okay, if tomorrow it is proved that he is murdered, then what answer will Mr. Bachchan give to all the people who were asking him to speak? What answer will he give? Nothing. If he committed suicide, okay, let's now reverse it. If Sushant Singh Rajput committed suicide, why is Mr. Bachchan not bothered that a young artist of his caliber had to die? क्यों नहीं फिक्र है उनको इस बात की कि अगर मर्डर हुआ तो भी फिक्र होनी चाहिए, अगर सुसाइड है तब भी फिक्र होनी चाहिए? अमिताभ बच्चन को फिक्र क्यों नहीं है? He is the senior most. आप ये नहीं कह सकते कि why are you talking about me, why are you criticizing me? अरे भाई, शरद सक्सेना ने आज बोला है तो चलो ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो लोग बाद में भी करेंगे कि you are the guardian, you are the senior most. आपने क्यों नहीं चीजें ठीक की? सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर या जिया खान जैसे एक्टर जिसने डेब्यू आपके साथ किया था, ये लोग मर जाते हैं और आप कुछ नहीं बोलते हैं. क्यों? क्यों? Why? It's not about murder. Why don't you speak? Hi, Nina. Yes, Hello, Nina, how are please you? go ahead. Yes, सुनील जी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. मैंने इनिशियली आपका वो चैलेंज नहीं सुना था कि पिक्चर्स के काउंटिंग करनी है, नहीं तो मैं काउंट करके बताती. नहीं, ये नरेशन बाद में सुनिए, अभी टाइम है आपके पास. हाँ, कल रात को 9 बजे से पहले मुझे तो अपनी एंट्रीज भेज दी. 3-4 मिनट का इनिशियल चला गया था जब मैंने शुरू किया, तो मुझे नहीं पता था. मैं कल काउंट करके बताऊंगी आपको. प्लीज इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग काउंट कीजिए और मुझे मैसेंजर पे भेज दीजिए. कल 9 बजे रात तक का वक्त है. जितनी एंट्रीज आ जाएंगी उन सबको मैं देख लूंगा और उसके बाद जिसका सवाल जवाब सही होगा वो अनाउंस कर दूंगा कि किसने सही काउंट किया और किसने सही नाम बताया. अगर नाम भी साथ में लिख सके दैट इज बेटर, कि वो कौन कौन सी फिल्में थी जिसका मैंने जिक्र किया. लेकिन नंबर्स बता देंगे उतना ही काफी है. ओके. ये जो आपने आज ये टॉपिक लिया है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये मेरे ख्याल से आज से नहीं कई सालों से ये होता आ रहा है. आज जो मिस्टर शरद, इनका पूरा नाम मेरे दिमाग में शरद सक्सेना, आज उन्होंने ये आकर ये बात उठाई है. ऐसे बहुत से एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, फिल्म स्टार्स हो गए जिनके साथ ये इश्यूज हो रहे होंगे, बट बिकॉज ऑफ ये जो ग्रुपिज्म या जो गैंगिज्म इन लोग बॉलीवुड के अंदर जो एक बना के रखे हैं, उसकी डर की वजह से या उनके साथ पंगा ना लेने की वजह से हो सकता है बहुत से लोग इस बारे में बात नहीं करते होंगे इतना. लेकिन जैसे कि बीच में एक टीवी आर्टिस्ट का भी आया था, शगुफ्ता अली, आई थिंक, कि वो थोड़े दिन आगे बोल रही कि उसके पास उसकी भी ऐसी हालत है कि काम नहीं है, कि खाने को पैसे नहीं है, वो चीजें बेच के अपना गुजारा कर रही है. तो इट्स शेम ऑन इवन बॉलीवुड एंड टीवी जो आर्टिस्ट ग्रुप है उनको भी, कि जो तुम्हारे कोलीग्स है आज अगर उनकी सिचुएशन इतनी खराब है, तो as a being a senior, like if we talk about Amitabh Bachchan, only being the most senior artist of this industry for more than I think 3-4 decades,
उनको तो चाहिए कि वो ऐसे लोगों का हाथ पकड़े और उनको आगे लाए, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी दरिया भरा हुआ है, आपको तो पैसे की कमी नहीं है। आप अगर 2 पिक्चर कम कर लेंगे तो आपके घर में रोजी नहीं आएगी, खाना नहीं आएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ये शेयरिंग का कॉन्सेप्ट तो हमको बचपन से सबको सिखाया जाता है। तो जब ये आप लोगों के लेवल पे जब पैसे की बात आती तो वहाँ आप लोग क्यों ये कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं? पैसा इतना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए? क्या आपके जो कोलीग्स जो आपके साथ इतने बरसों से काम करते आए हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, वो किस तरह से अपना घर चला रहे, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है जो मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत से जो बेचारे बहुत ही बहुत मतलब खराब हालत में मरे हैं इंडिया में, बॉलीवुड के स्टार्स बहुत सारे। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री क्या साधना के पास पैसे नहीं थे, निम्मी को वो जो बीएमसी यानी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ट्रक होता है वो उठा के ले गई। यस, ऐसे भी केसेस। साधना डिड नॉट हैव मनी व्हेन शी डाइड। परवीन बाबी का सब जानते हैं, परवीन बाबी की क्या हालत हुई थी, सब जानते हैं। शी डाइड और द बॉडी वाज रिकवर्ड 3 days later. After 3 This is days. the real story. Yeah, so this is a very big shame on all these Bollywood शहंशाह और सुल्तान और व्हाट नॉट पता नहीं क्या बनकर बैठे हुए और अपने आप को क्या समझते हैं। और पायल ने जैसे बोला कि इन सबको बनाने वाले तो हम बेवकूफ हैं, हम सारे बेवकूफ पब्लिक है जो इनको आज बादशाह शहंशाह बना के बैठे हुए। और आज जब हम, और अगर ये सुशांत का केस सामने नहीं आता ना तो हम इनको बादशाह शहंशाह ही मानते रहते, क्योंकि हमको अभी तक रियलिटी चेक नहीं पता चली थी। आज हमको जब रियलिटी पता चली है और हम सब जानते हैं कि क्या सिचुएशन है वहां किसी भी चीज का ना एक वो नीना मैम आप तो जानती है ना, एक स्टॉक का हाई रेट होता है ना, जब वो पीक पे पहुंचता है ना तो उसके बाद वो रिवर्स मारता है और वो नीचे आता है, लोएस्ट स्टेप पे आता है और फिर वो चलता है। करेक्ट। तो इंडस्ट्री का हाईएस्ट पीक जो था वो 2020 स्टार्ट था, पीक पे थी इंडस्ट्री, राइट। और जून 14 2020 से इस इंडस्ट्री का स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो रिवर्स में जाना शुरू, और अभी नीचे जाएगा जाएगा जाएगा, बहुत नीचे तक जाएगा। उसके बाद जब अकल ठिकाने आएगी देन इट विल रिवर्स अगेन, क्योंकि आपका वक्त था, आपने सबको आलू भाजी समझ दिया, आपने समझा कोई वैल्यू नहीं है, आलू प्याज समझ गए आप सबको, पब्लिक को ग्रांटेड ले लिया आपने, जो हम देंगे तो देखेंगे। तो अब अगर ये चलेगा ना तो नहीं चलेगा। आपका स्टॉक वैल्यूएशन बहुत ज्यादा था, बहुत ऊपर पहुंच गया था। ये नेचुरल रूल है, रूल ऑफ नेचर है कि आराम की हर एक चीज का जो चढ़ता है वो उतरता भी। तो शायद वक्त आ गया है कि बॉलीवुड का जो स्टॉक जो बहुत हाई हो गया था दैट्स गोइंग टू कम डाउन। ये वो है ना कि व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। यस, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। और वैसे भी इट्स अ रूल ऑफ व्हाट यू कॉल rule of nature, right? That you grow and you lose and then you win and then you lose. So you have been winning. In the process what happened that you forgot कि जमीन भी है, आपके पाँव जमीन पे पड़ी नहीं, वो आसमान पे उन लोग चल रहे हैं, उड़ ही रहे हैं उन लोग। और उनके दिमाग में ना इतना ज्यादा ये जो अभी इन लोग जो इतना हर चीज में आगे बढ़ गए हैं, इसको what exactly जो इन लोग पार Ved Krishnan is saying he is the only earning member of the family. No, Ved, that's not correct. No, that is not correct. You don't know the kind of money that Aishwarya Rai Bachchan is earning by default because she was the Miss World. आज भी endorsements के पैसे, आज भी when she goes for events she gets huge money. So even otherwise, even Abhishek Bachchan does films. It's not as if he's not doing films. He's doing films. अभी भी 3 फिल्में आ रही हैं अभिषेक बच्चन की। Yeah, but she's the only one who is not working. So it is not that Amitabh Bachchan is the sole bread earner in the family. ऐसा नहीं है. There is something like Screen Actors Guild in Hollywood. Is there something comparable? Yes, it is there. Yes, it is there. But it is of no use. It is but then do they not have like a fund for actors that are debilitated? Namrata, it's not about fund. It is a very simple thing. I want to work. I must get the work. I can get the work provided the work comes to me ना. एक ही शख्स के पास सारा काम चला जाएगा तो मेरे पास आने वाला काम भी नहीं आएगा ना. Because no, I'm talking about those sick people that died. शगुफ्ता का एग्जाम्पल दे रहे थे. शगुफ्ता
had to make an appeal. When Shagufta made an appeal, she was helped. ये इंडस्ट्री पब्लिसाइज करके वेलफेयर चीजें करती है, बिकॉज उसमें भी इनको प्रॉफिट लगता है. कोई सिस्टम नहीं है नम्रता, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रेजिंग. वी आर सेइंग देयर शुड बी अ सिस्टम to That's what I'm provide saying. security and respect. This That's what I'm industry saying. is not an industry by per se. Number one. Number two, it doesn't have a system. ये इंडस्ट्री बॉदर ही नहीं कर रही है कि सुसाइड हो रहे हैं. There have been nearly 40 suicides between 2019 December and 2020 December. But this industry is not bothered. Yes. Amitabh Bachchan is the eldest, is the senior most, but he is not bothered. Then who is bothered? You have to plead, you have to They beg. are not bothered because they all are part of one group. और वो एक दूसरे को बोलते हैं ना, खुश करने में है कि तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करूं. ये वही चक्कर है यहाँ पर. तो इसका मतलब ये हुआ कि मोनोपोली मोनोपोली चल रही है, और मोनोपोलिस्टिक सिस्टम में सब कुछ अमिताभ बच्चन को ही जाएगा. जैसे शाहरुख खान को जाएगा, आमिर खान को जाएगा, सलमान खान को जाएगा, अक्षय कुमार को जाएगा, अजय देवगन को जाएगा, सैफ अली खान को जाएगा. इसके अलावा किसी को नहीं जाएगा. बिकॉज उन लोग का ग्रुप है ना, वो लोग एक ही ग्रुप के, एक ही थाली के चट्टे पट्टे सारे. उन लोग एक ही ग्रुप है, एक दूसरे को बैकिंग देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. अगर एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे तो उनको मूवीज नहीं मिलेगी. लाइक इन केस ऑफ सुशांत के केस में अमिताभ बच्चन से बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशंस थे. लोगों ने उनको बैक किया था ट्विटर्स पर और इंस्टा में कि प्लीज आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए. लेकिन उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला. उसका नतीजा क्या हुआ? लोगों का एक उनके ऊपर से भरोसा उठ गया. उनकी फिर जो जिस तरह की बाद में उनकी ठेकड़ी उड़ाई गई, वो जब हॉस्पिटल गए और किस तरह से लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, क्या हुआ? ही लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी. इतना ऊपर जो पहुंचे थे वो धाम से वो नीचे आ गए. क्यों? क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी थी. अच्छा ठीक है, अगर उसको किसी ने मारा भी था, अगर मारा भी है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अगर वो मर्डर भी है, बीइंग अ सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट आप क्या उसके लिए दो शब्द भी अच्छे नहीं बोल सकते थे? उसमें तो कोई आपका गला नहीं काट के जाता कि भाई आपने क्यों बोला उसके बारे में. एक इंसानियत भी तो होती है ना, ह्यूमैनिटी के लिए उस बेसिस पे भी आप किसी के लिए अच्छा बोल सकते हैं, फैमिली को जाके दो अच्छे शब्द बोल सकते हैं. ये तो हर इंसान का एक वो है, कर्तव्य है हमारा कि कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में मर जाता है तो हम उसकी अयादत. मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कल ये बात सामने आ गई कि इट वाज मर्डर, सो व्हाट विल अमिताभ बच्चन टेल द फैंस? व्हाट विल ही टेल द फैंस? फैंस वर आस्किंग ना कि आप आइए और बोलिए. व्हाई डिडंट यू कमेंट? आपने ये सब करके अपने ऑरा को कम कर लिया. वो बोलेंगे तो वो जो ग्रुप है ना उनके अगेंस्ट हो जाएंगे ना, उनको बॉयकॉट कर दिया जाएगा ग्रुप से. फिर उनको मूवीज नहीं मिलेगी, तो आपका चॉइस बहुत सिंपल है. या तो आप पब्लिक को अपने साथ रख लो या अपने सिस्टम को अपने साथ रख लो. तो आपका रिस्क आपका है. अब तक तो लोग यही समझ रहे थे ना कि हम हमारे सिस्टम में चलते रहेंगे और पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहेंगे, पब्लिक हमारी मूवीज देखती रहेगी और हम इसी तरह से हमारा धंधा चलाते रहेंगे. लेकिन अभी ऊपर वाले की करनी थी कि पब्लिक की आंखें खुल गई है, पब्लिक होशियार हो गई है, स्मार्ट हो गई है, चालाक हो गई है. Sunil, I cannot help but understand or even imagine the amount of fear that they're operating under. Well, there's absolutely no fear. I'm telling you seriously. जो लोग established है ना, उनका कोई fear नहीं है. Fear of insecurity. There is an insecurity. Insecurity, fear, there's nothing. They are in command. Please understand. They are fully in command. उनको मालूम है कि उन्हीं को मिले. अरे, what kind of insecurity? What kind of fear that you get all the 11 films? It can't be insecurity. It can't be fear. No, I'm piggybacking off of the comment that he couldn't say a kind word for. That is because he did not want to say it. As simple as that. If you don't say, अमिताभ बच्चन ने चूज किया नहीं बोलेंगे, ठीक है, उनकी मर्जी है. What happened? Your aura came down because your aura is created by people, not the people who are working in the industry. Aura has been created by you. Not by Mr. Bachchan's colleagues. Mr. Bachchan के colleague ने aura नहीं बनाया है, उनके फैंस ने ऑरा बनाया है. जिन्होंने जंजीर देखा, जिन्होंने दीवार देखा, जिन्होंने कुली देखा, जिन्होंने नसीब देखा, जिन्होंने मुकद्दर का सिकंदर देखा, उन लोगों ने बनाया है उनके मुकद्दर को. तो आप उन्हीं के क्वेश्चन को जवाब नहीं दे रहे हो तो इंडस्ट्री के लोग आपको क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते. इंडस्ट्री के लोग आपके ऑरा को नीचे कर रहे हैं. एज सिंपल एज दैट. चेहरे में आपको रिया चक्रवर्ती के साथ काम करने से मना कर देना चाहिए. नहीं करेंगे, नहीं करूंगा मैं. सिंपल एज दैट. क्यों?
बिकॉज आपको मालूम है कि इट इज गेटिंग यू नेगेटिव पब्लिसिटी। आप बोल रहे हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता पब्लिक क्या बोल रही है, चलो बोल दिया, नहीं करता क्या कर लोगे, है ना, क्या कर लोगे। अब क्या कर लोगे बोल के तो पब्लिक को लगता है कि चैलेंज कर रहे हो आप। तो आपका इंटेंशन अगर सही भी हो और आप किसी पर्टिकुलर आदमी को बोल रहे हैं, पब्लिक सारा अपने ऊपर ले रही है। अब पब्लिक कहते ठीक है फिल्म रिलीज करा के दिखाओ, हम बता देंगे कि हम क्या कर लेंगे, है ना। तो मेरा पॉइंट ये है, you're saying it's defiance. I still think it's fear. नो नॉट एट They're ऑल, under fear. नो नॉट एट ऑल। फियर में आपको 11 की 11 फिल्में नहीं मिलती। शरद सक्सेना को भी फिल्म मिलनी चाहिए ना, शरद सक्सेना का फियर क्यों नहीं है? नो नो, वो Why is he not insecure? नताशा इज सेइंग कि उन लोगों को पब्लिक का फियर है, इसीलिए चेहरे मूवी No, no, she is talking about insecurity. Isn't it? She's talking about insecurity. No. I'm talking about the whoever is controlling Bollywood. No one is controlling. This is exactly the point. No one is controlling. Control करना होगा तो अमिताभ बच्चन को रोल क्यों देंगे? वो रोल भी खुद ही ले लेंगे। अमिताभ बच्चन को क्यों देंगे? वो इसलिए दे रहे हैं because I'm telling you there is a coterie and that coterie keeps everything. पार्ट ऑफ इट। Yes, so he is part of that coterie. So अगर 10 लोग हैं, घूम फिर के उन्हीं 10 को फिल्म मिलेगी। वो मिल बांट के वो लोग खा लेते हैं। करेक्ट। वो 8-10 जन हैं, वो मिल बांट के ही वो मूवी ले लेते तो हैं। आपको फिल्म मिलेगी किसको? सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान तो अपनी फिल्म बनाते हैं, अक्षय कुमार, अजय देवगन, एक लॉट ये हो गया। दूसरा हो गया अमिताभ बच्चन, उस सीनियरिटी में सिर्फ अमिताभ बच्चन को फिल्म मिलेगी। हालांकि अनुपम खेर, अमिताभ, जबकि और भी लोग हैं लेकिन अमिताभ बच्चन को मिलेगी। उसके नीचे आओ तो ऋतिक रोशन को कितनी फिल्म मिलती है? मिलती ही नहीं है। कहाँ है ऋतिक रोशन फिल्म? 2 फिल्म आ जाती है मैक्सिमम। अभी एक सुना है बंसाली जी उसको ले रहे हैं। चलिए एक फिल्म, चलिए 2 फिल्म आ जाएगी साल में, 2 साल में 2 फिल्म आ जाएंगी। ऋतिक रोशन को फिल्में मिलती नहीं है, अभिषेक बच्चन को मिलती नहीं है। फिल्म मिलती किसको है? नेक्स्ट किसको मिलती है? वरुण धवन को, बिकॉज हिज फादर इज अ प्रोड्यूसर, सो ही हैज अ कमांड। तो वरुण धवन को फिल्म मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। और किसको मिल रही है? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता श्रद्धा कपूर को इतनी फिल्म कैसे मिलती है। श्रद्धा कपूर की इज गेटिंग ऑल द मूवीज। आर देयर बेटर एक्ट्रेस देन हर? बिकॉज वो भी तो भाई ग्रुप की है ना, और उसका फादर फिल्म इंडस्ट्री में बरसों से है। तो वो सब बोलते हैं ना, एक यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक। वो हालांकि मैंने कहीं पर ये पढ़ा था, सुनील शेट्टी हालांकि वी नो ही इज वन ऑफ द रिफाइंड एक्टर ऑफ 80s एंड 90s। अक्षय कुमार के साथ की वो मतलब कुलीग्स में से है। वो ये बोल रहा था कि आज मुझे कोई फिल्म में नहीं लेता है, हालांकि मेरे जो काउंटर पार्ट, जो एक्टर्स, जो आर्टिस्ट है, वो अभी भी लीड रोल में काम कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो व्हाई। उसका रीजन डिफरेंट है। उसका रीजन ये है, इफ यू कंपेयर अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार हैज मेंटेन्ड हिमसेल्फ वेरी वेल। ये फैक्ट है। बट सुनील शेट्टी भी फिजिक वाइज इज वेरी फिट। नो, ही मे बी, बट इंडस्ट्री में फिल्म को जब आप लेते हैं टोटलिटी में लेते हैं ना, टोटलिटी में यू हैव टू फिट इन। सो मेरा पॉइंट ये है कि नीना मैम देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात, अमिताभ बच्चन इस स्टेज में 11 में से 4 फिल्में छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं, 5 फिल्में छोड़ सकते हैं। अगर शरद सक्सेना बोल रहे हैं कि भाई मुझे काम चाहिए, और आपने 40 साल उस शख्स के साथ काम किया, उसको जानते हो, तो आप 2 फिल्म उसके लिए छोड़ सकते हो। आप 2 फिल्म अनुपम खेर और बाकियों के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन आप एक भी फिल्म छोड़ने को तैयार नहीं। वो बोलते ना, जितना मिले उतना कम है, ये हाल है। मैं सुनील शेट्टी का सिर्फ ये बता रही थी कि वो भी इनके ही लेवल का, इनके ही कैटेगरी का स्टार था, लेकिन आज वो उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो कोई भी मूवीज में नहीं आ रहा है। बरसों से उसका बंद हो गया आना। चलो इस इंडस्ट्री को कोई बोलने वाला नहीं था, अब आप लोग बोल रहे हैं मैम, इसलिए इतनी सारी बातें हो रही हैं। अक्षय कुमार जैसी या सलमान खान लेवल की मूवीज नहीं कर सकता है, चलो कुछ तो उसको मूवीज मिल सकती है ना। लेकिन वो बोलता है कि आज ऐसा हो गया है कि अगर 50 करोड़ कोई अगर अक्षय कुमार या उस टाइप के स्टार को लेकर मूवी बनाने को बोलेंगे किसी को, तो प्रोड्यूसर लगा देगा। लेकिन अगर मेरे साथ अगर 1 करोड़ की भी मूवी 50 मतलब 500 करोड़ की उनके साथ बनानी है तो बना लेगा, लेकिन मेरे साथ कोई 5 करोड़ की भी मूवी नहीं बनाने मांगता है। अभी सेट योर कैमरा राइट, आई एम जस्ट पुटिंग यू ऑन एयर, जस्ट सेट योर कैमरा। हालांकि वो कोई इतना आउटसाइडर भी नहीं था, वो तो
इन लोगों के ग्रुप का था, लेकिन उसको भी आउट कर दिया गया है। बोलने का मतलब ये था मेरा। ओके, नहीं, माय पॉइंट बहुत सिंपल है कि आपको सबको कुछ ना कुछ देना चाहिए. एवरीवन शुड गेट अ पाई ऑफ दैट, शेयर ऑफ दैट पाई. यस, आरती, प्लीज गो अहेड. आरती, कैन यू हियर मी? Yes, hello. Yeah, Aarti, Hello, please Sunisa, can you hear me? yeah, please go ahead. तस्वीरों में कोई बोलने वाला नहीं था, आप लोग बोल रहे हैं मैम, इसलिए इतनी सारी बातें हो रही हैं. अक्षय कुमार Coming back, I think you have put it on speaker. So remove it from your speaker. Okay. Okay, let me do that. लेकिन वो I think there's a problem with her audio. Oh, one second, Neena. Yes, Neena ma'am, please go ahead. yes, Aarti, I think there is a delay. Aarti, there is a delay with your audio. I think just set your remove it from the speaker and set your phone on use a earphone or a headphone and then connect. I think that is better, because right now I'm all getting my whole narration back. So once again, I'll try once more. Just give me a second. I'll just try once more. Yeah, if you can just give an audio check. Okay, is it better now? Yes, perfect. So go ahead. Okay. Sorry, मेरा YouTube दूसरे screen पे on था. I'm really sorry. Perfect. Please go ahead. Sorry, sir, I haven't heard from the beginning, लेकिन मैं सुन रही थी portions about Amitabh Bachchan and basically ये जो older generation है जिनसे हम expect कर रहे हैं कि ये कोई standard set करें, correct? यही topic है ना? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी खुद बहुत सोच रही थी, somebody like Amitabh Bachchan, I felt very disappointed कि इन्होंने कुछ बोला नहीं, not just about Sushant, but Me Too में और ऐसे मतलब किसी भी टॉपिक पे, you know, abuse of women or objectification of women, इन्होंने अभी तक इस पे कोई comment नहीं दिया, बल्कि he himself came in a so-called item number जो इनकी अब daughter-in-law हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो in a way he's even supportive of such things. So my perspective now is कि I think he has always been money-minded and arrogant. वो हमें इस तरह से हमने इस नजरिए से देखा नहीं कभी इन लोगों को. And now when I look at interviews of even Aamir Khan, जिन्होंने वो पूरा शो किया था वो सत्यमेव जयते, in which he spoke about child abuse and all of that. लेकिन आप ये देखें कि ये फिल्मों में क्या दिखाते हैं, इनकी ही फिल्मों में क्या दिखाते हैं. मैं नहीं कह रही कि इन लोगों ने ठेका ले रखा है पूरे बॉलीवुड का, लेकिन ये अपनी ही जिस तरह से औरतों को दिखाते हैं, जो Three Idiots में they were joking about the word बलात्कार, वो एक साउथ इंडियन बंदे को instead of चमत्कार they wrote बलात्कार. I mean, what kind of rubbish comedy is this? And अब हम क्योंकि वही चीजें अब हम देख रहे हैं, अब हमें वो अखर रही हैं. You know, we always compensated and said कि वाह भाई इनकी तो acting इतनी लाजवाब है कि will, you know, हम notice नहीं करते थे. So I think there's always been this person. You gave a benefit of doubt and ignored their Right. You know, जो भी वो कर रहे थे, आप benefit of doubt देते चले जा रहे थे. Exactly. But I think now more than a benefit of doubt, अब हमें जो ये खास तौर से I would say it's not just matter of being anti-Hindu, but ये जो desensitized है ना, ये इंडिया जैसी pluralistic society में रह के आप इस तरह के anti-Hindu या for that matter any religion के खिलाफ आप इस तरह की बकवास करेंगे, it's not acceptable. You know, it's sense of humor का भी एक, maybe this is a different topic, I'm sorry, I'm going into a different tangent, लेकिन ये भी बात होती है कि हाँ जी, we expect from people like Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, who's a member of Rajya Sabha. I mean, you know, she went in a parliament session and said कि जिस थाली में खाते हैं छेद करते हैं. Now, how arrogant is that? ये तो arrogance की भी हद है ना. भी आप कौन होते हैं डिफाइन करने वाले कि थाली क्या है? आप कौन होते हैं डिफाइन करने वाले कि छेद क्या है? And थाली itself is like connotates कि आप अपने आप को बहुत ऊंचा कोई दर्जा दे रहे हैं और बाकी के सब नीचे हैं. So that's my perspective. No, but my point is very simple, Aarti. उस वक्त भी उन्होंने इसलिए कहा था so that कंगना रनौत और रवि किशन चुप हो जाए.
The purpose was only to silence them. Exactly. This is not correct. ये सही नहीं है. आप पे अगेंस्ट में कोई भी एक वर्ड बोलेगा आप उसको साइलेंट कर देंगे. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री की बात इंडस्ट्री में रहनी चाहिए, इंडस्ट्री के बाहर नहीं जानी चाहिए. चलिए ठीक है. तो आपने ऐसा क्या काम किया है जिसको लेकर इंडस्ट्री की बात इंडस्ट्री में रहनी चाहिए? आपने शाइनी आहूजा का कैरियर खत्म कर दिया. उस आदमी के अगेंस्ट में एलिगेशन खत्म हो गया, लेकिन उसको कभी रोल नहीं मिला. उसके बाद आज तक नहीं मिला. हम लोगों ने भी गलत माना था उसको, सबने गलत माना. क्यों? क्योंकि जो नैरेटिव दिया हम लोग को, जो नरेशन हमको सुनाया, हम लोगों ने उसी नैरेटिव को माना. हमको बोल दिया कि केदारनाथ इज अ यूजलेस फिल्म, हमने उस नैरेटिव को मान लिया. सो केदारनाथ वाज अ फ्लॉप बट भारत वाज अ सुपर ब्लॉकबस्टर. जबकि भारत में कुछ नहीं है कि केदारनाथ इज अ सुपर फिल्म. तो Simba was being kept up, propped up, and this movie was being downgraded. And we bought it. We bought it. Now we know that we were fools. Even journalists could not understand it. What was going on? तो अब क्या किया जाए सुनील सर? What do you think? I mean, अब because unfortunately ठीक है हमारी अब डिमांड चेंज हो गई है, बट ये अपनी सप्लाई चेंज नहीं कर रहे, तो अब हम करें क्या? नहीं जी, मैंने बताया ना, इट्स वेरी सिंपल. ये लोग सिर्फ, आप कहते हैं ना वो, यू पुट अ ब्रेव फेस, दे आर पुटिंग अप अ ब्रेव फेस. इट्स अ बैटल बिटवीन व्हाट यू कॉल बैटल ऑफ नर्व्स होता है ना. इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स. व्हिच साइड विल ब्लिंक फर्स्ट? आपको ये देखना है कौन सा साइड पहले ब्लिंक करेगा. उनको लगता है कि ये लोग थक जाएंगे. हाँ, राइट. फैंस विल गेट टायर्ड and they will come back to do the same thing. That is the reason कि सारी फिल्में अभी बन रही हैं, वही एक्टर्स की बन रही हैं, वही एक्टर्स को मिल रही हैं, सब कुछ वही हो रहा है जैसे हो रहा था. क्यों? Because they are trying to make themselves appear very normal, as if कुछ नहीं हुआ है. ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हुआ है. पहले दिव्या भारती हुई थी, कुछ नहीं हो पाया. फिर जिया खान हुई, कुछ नहीं हो पाया. सुशांत सिंह, प्रत्युषा बनर्जी हो गई, कुछ नहीं हुआ. इतने सारे केसेस हो गए, कुछ नहीं हुआ. सुशांत सिंह राजपूत हो गया, आपको लगता है कुछ नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा. वो चाहे सुसाइड हो या मर्डर हो, मैं एज ए जर्नलिस्ट ये समझता हूँ, चाहे सुसाइड हो या मर्डर हो, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ. बट मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूँ, अगर वो सुसाइड भी है और अगर वो मर्डर भी है, तो जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, दे नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, एज सिंपल एज दैट. आज शरद सक्सेना जिसने 40 साल he has worked for more than 4 decades. Yeah. He came from a very small background, and from there he has survived in the industry 40 years doing small bits and pieces roles. At this age, at least give him his due. उनको 2 फिल्म मिलने का हक है कम से कम. He is saying कि आप फिल्म मिलेगा कैसे? हमको तो डर्ट देते हो आप, हमको डस्ट लाके देते हो, सर्व करते हो, जंक सर्व करते हो हमको. हम क्यों कैसे पिक करेंगे? क्योंकि सारी फिल्में तो अमिताभ बच्चन को जा रही हैं. What kind of a justice is this? I agree. I agree. That is going on in the industry. But and now you cannot silence Mr. शरद सक्सेना को बोलो कि थाली के में छेद है और थाली के बैगन है, लोग लुढ़कते रहते हैं. Call everybody wrong. You can't do that. There is a problem within the industry and you admit it. So no one is willing to admit because उनको लगता है डर, अगर हमने एडमिट कर लिया तो हम खत्म हो जाएंगे. ये डर लगता है. अरे ऐसा नहीं है भाई, गलती हो जाए तो कबूल कर लेना चाहिए. मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि अगर इस वक्त अमिताभ बच्चन जैसे टाइप ऑफ पर्सनालिटी अगर आए, है ना, और वो वाकई मतलब there has to be some level of sincerity because हम लोग lost opportunity आती. अभी आएंगे, अभी कोई बाय नहीं करेगा लॉजिक. जैसे अक्षय कुमार जब आए थे, nobody bought it. He said, I'm sorry. No one will buy the logic. आप एक चीज आप नोटिस करो, एक चीज पहले when these are very small things, you just have to notice them. पहले इनके इतने सारे इंटरनेशनल शोज होते थे. अभी कोविड के कारण बोल रहे हैं हम लोग इंटरनेशनल शोज नहीं कर, करेक्ट? तो इंटरनेशनल शोज नहीं हो रहे होंगे, कहीं भी नहीं हो रहे होंगे, करेक्ट? यूएस और यूके में तो जिंदगी वापस लाइन पे है ना. बिल्कुल. वैक्सीनेशन के बाद वहां तो सब कुछ हो रहा है. तो आप क्यों नहीं जाके यूएस में शो कर रहे हो? आपको कोई बुलाएगा तो आप जाओगे ना, कोई बुला ही नहीं. इंडियन कम्युनिटी बुलाती ना आपको, इंडियन कम्युनिटी बुला नहीं रही है. आपके एक ऑटोग्राफ के लिए आप 10,000 रुपए ले रहे थे, एक ऑटोग्राफ के लिए, पर पर्सन 1 ऑटोग्राफ यू आर चार्जिंग 10,000 रुपीज. अभी आपका कोई ऑटोग्राफ ही नहीं मांग रहा, तो whose loss is this? People used to worship
you like God. As I said, for me there were only two gods. आज आपको लोग क्वेश्चन कर रहे हैं. Whose loss is it? Your aura has gone down. Industry's value has gone down. That's because आप admit नहीं कर रहे हो अपनी गलतियां. Yeah. Please admit it. So this slide has just started, according to me. Their stock had reached the top peak. This stock has to come down. The stock valuation has to come down. So industry's stock valuation has to come down. It is not. It has just started. अगर I just God forbid, कुछ भी एक और हो गया इंसिडेंट ना, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी परेशानी पड़ जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी में. क्यों? क्योंकि करेक्शन तो है ही नहीं इनके पास. Yeah. And they will not be able to answer anybody. And there's a huge pressure from the investigating agencies. चाहे CBI हो, ED हो, NCB हो, सबका pressure industry पे है. Everyone is scared of the agencies. So there is multiple fear that they have right now. Yes, go ahead. नहीं सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जैसे आई लिव इन द यूएस, इस वक्त आई एम इन इटली, बट तो आई पर्सनली एंड मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं तो डेफिनेटली फील करती हूँ कि शिफ्ट आया है ना. मुझ जैसे लोग अपने बच्चों को भी कह रहे हैं कि हम नहीं देख रहे, बॉलीवुड मूवीज नहीं देखना, ये ऐसे ही नहीं है. पर आप मुझे बताएं कि इज देयर रियली अ चेंज हैपनिंग? आई मीन I'm just explaining that to you. हाँ, I'm आप कह explaining that to you. आज के टाइम में दुबई, I think there's a something drop. So anyway, I was just giving an example of Dubai. Dubai is a normally considered to be safe country even now, but there are no shows happening there also. So it's actually taken a hit, no doubt about it. How much it takes a hit will depend on people like Amitabh Bachchan. If they do some course correction, then things will change, or else the stock valuation is going to go down further till the time you actually realize that there's a problem. The problem is that the industry is not realizing that there is a problem. This is the real problem. So शरद सक्सेना जैसे लोग जो आकर आज बोल रहे हैं कि मेरे को काम चाहिए, लेकिन काम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सारा काम तो अमिताभ बच्चन के पास जा रहा है, this is not a good thing. This is a negative thing. And that is what the industry has to think. So on that note, I close the session. Thank you so much for connecting. We shall be back with something else tomorrow. Today was an interesting topic. A lot of people came and spoke finally, and I thought it was really, really logical. So I'll come back tomorrow and talk much more about it. Thanks.